آج کے اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 15 کا، جس کا عنوان ہے مرثیہ۔ بچوں سبق مرثیہ کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم مرثیہ کی تعریف پڑھیں گے، دوسرے حصے کے اندر ہم مرثیہ نگار میر ببر علی انیس کے حوالے سے بات کریں گے، تیسرے حصے کے اندر ہم میر ببر علی انیس کا ہی ایک مرثیہ جو حضرت عباس کی شہادت کے اوپر منحصر ہے، اس مرثیے کے اوپر مطالعہ کریں گے، بات کریں گے وہاں پر، اور چوتھے حصے کے اندر مرثیے سے متعلق سوال و جوابات ہم کریں گے، مشق کریں گے سوالوں کی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ۔ مرثیہ سبق کا نام ہے، اور پہلا جو اس کا چیپٹر ہے، پہلا جو اس کا پارٹ ہے، اس کا عنوان ہے مرثیہ کی تعریف۔ یہاں پر ہم اس سبق کے اندر مرثیہ کی تعریف، اجزاء ترکیبی اور مرثیے کے فن کے لیے کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے، فنی اعتبار سے مرثیے کو اعلیٰ کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان اجزاء کے اوپر ہم یہاں پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سبق کا پہلا حصہ۔ بچوں مرثیے کے معنی میں آپ کو بتا دوں، مرثیے کے لغوی معنی ہوتے ہیں رونا پیٹنا یا ماتم منانا۔ میت کے اوپر ماتم منانے سے متعلق جو نظمیں ہوتی ہیں وہ سب مرثیہ کہلاتی ہیں۔ مرثیہ عربی رسا سے بنا ہے، رسا کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، رونا پیٹنا۔ مرثیے کی شروعات کے بارے میں اگر بات کریں کہ شروعات کہاں سے ہوئی، تو مرثیے کی شروعات ہوئی ہے بچوں عرب سے۔ عرب میں دور جہالت کے وقت مرثیے لکھے جاتے تھے۔ دور جہالت اسلام سے آنے کے قبل، اسلام سے قبل کا دور جہالت کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ مرثیے وہاں پر لکھے جاتے تھے، اور عرب سے یا عربی زبان سے مرثیے فارسی زبان کے اندر گئے۔ فارس کے جو شعراء تھے، فارس کے جو ادیب تھے، وہ اپنی زبان کے اندر وہاں سے لے کر آئے، اور فارسی سے اردو ادب کے اندر مرثیے رائج ہوئے۔ مرثیے کی شروعات اردو ادب میں بہت پرانی ہے۔ جب شروعاتی اردو بن رہی تھی تبھی سے مرثیے رائج ہیں۔ دکن سے اردو ادب کے اندر مرثیے آئے، اور دکن میں بھی قلی قطب شاہ جو پہلے صاحب دیوان شاعر تھے، ان کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اختلافات ہیں اس کے اندر، لیکن کئی نقاد اور کئی محقق قلی قطب شاہ کو ہی پہلا مرثیہ نگار قرار دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سبق بچوں۔ جو سبق مرثیہ کا پہلا حصہ ہے، مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رونا یا ماتم کرنا، اور مرثیہ غم کا اظہار کرنے کے لیے ہی لکھے جاتے ہیں۔ اردو ادب میں 2 طرح کے مرثیے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے روایتی مرثیہ اور ایک ہوتا ہے شخصی مرثیہ۔ روایتی مرثیہ سب سے زیادہ طور پر لکھے جاتے ہیں۔ روایتی مرثیہ واقعات کربلا کے اوپر مبنی مرثیے کو کہا جاتا ہے، اور شخصی مرثیہ واقعات کربلا کے علاوہ کسی اور شخص کے اوپر لکھا جائے وہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ شخصی مرثیہ کے اندر حالی کا مرثیہ غالب اور علامہ اقبال کا مرثیہ داغ بہت مشہور اور مقبول مرثیے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے مرثیے۔ مرثیے سے وہ نظم مراد لی جاتی ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف یعنی خوبیاں، اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ مرثیہ کا مطلب ہے، مرثیہ بنا ہے رسا سے، اور رسا کے معنی ہے رونا پیٹنا، الم ظاہر کرنا، ماتم بنانا۔ تو آپ کو مرثیہ کے معنی بھی یاد رہیں گے۔ تو مرثیہ ایسی نظم کو، ایسی شاعری کو کہا جاتا ہے جس میں دکھ درد کا، الم کا اظہار ہو، مظاہرہ کیا جائے اپنے دل کی تڑپ کا، درد کا، غم کا۔ اور زیادہ تر مرثیے واقعات کربلا کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ جو کربلا کا سانحہ ہے ہمارے مذہب اسلام میں ہوا، جو اس سانحے کے اوپر یہ مرثیے لکھے جاتے ہیں۔ اردو میں مرثیے کا ایک خاص مفہوم متعین ہو گیا ہے، یعنی مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ اردو ادب میں مرثیے کو جو معنی لیے گئے ہیں وہ معنی یہی مان لیے گئے ہیں کہ جس کے اندر شہدائے کربلا یا واقعات کربلا کا بیان ہو اسے مرثیہ کہا جائے گا۔ اس شاعری کو مرثیہ مان لیا گیا ہے۔ باقی تمام لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مرثیے کی 2 قسمیں ہیں، روایتی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ روایتی مرثیہ
जो वाक़यात करबला, सानहाए करबला के ऊपर लिखा जाए, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत और आपके साथ जो लोग थे उनकी शहादत और बैन वगैरह के ऊपर लिखा जाए, वो मरसिए रिवायती मरसिए। और जो करबला, वाक़यात करबला से हटकर किसी और शख्स के ऊपर लिखा जाए तो वो शख्सी मरसिया। मसलन अब शख्सी मरसिए के अंदर जो मशहूर हैं उन्हीं के नाम दिए आपको, फिर से देखिए, हाली का मरसिया गालिब और इकबाल का मरसिया दाग, ये बहुत मशहूर हैं और बहुत मकबूल हैं। जब भी शख्सी मरसिए के बारे में आपको पूछा जाएगा, इमाम हुसैन के मरसिए के अलावा शख्सी मरसिए के बारे में पूछा जाता है, तो ज़्यादातर इन दो मरसियों के बारे में ही पूछा जाता है कि मरसिया गालिब किसने लिखा है, या मरसिया दाग किसने लिखा है, या हाली के मरसिए का नाम बताओ, या अल्लामा इकबाल के लिखे हुए मरसिए का नाम लिखिए। इस तरह के सवालात यहाँ से बनते हैं। आगे आते हैं। इब्तिदा में मरसिए मुख्तसर लिखे जाते थे और उनके लिए कोई ख़ास शक्ल मुकर्रर नहीं थी, चुनांचे शुरू में मरसिए गज़ल की हैयत में भी लिखे गए हैं। हैयत यानी शक्ल, बनावट, साख्त। तो मरसिए के लिए जो लिखे जा रहे थे कोई शक्ल, कोई हैयत नहीं थी, जिसके शायर को जैसा अच्छा लगता था वो उसी तरतीब के अंदर, उसी शक्ल के अंदर मरसिए लिखता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मरसियों को एक शक्ल दे दी गई, मरसियों को एक रूप रंग दे दिया गया, मरसियों के लिए अज्जाए तरकीबी बना दी गए और उन्हीं अज्जाए तरकीब के मुताबिक ही मरसिए लिखे जाने लगे। और 3 मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों और 6 मिसरों के बंदों की शक्ल में भी नज्म किए गए, गजल की शक्ल में भी लिखे गए, और गजल के अलावा 3, 4, 5, 6 जैसे जिसको उलता है वैसे मिसरों का बंद बनाया गया, शेर बनाया गया और लिखे गए। कहा जाता है कि सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। मुसद्दस 6 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल एक बंद, मिसरा आधे शेर को मिसरा कहते हैं, 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। और यहां पर जो गजल के एतबार से है ये शेर, यहां पर बंद के एतबार से हम देखेंगे तो 6 मिसरे जिस शेर के अंदर हो, जिससे एक बात समझ में आ रही है पूरी, वो मुसद्दस की शक्ल है। 6 मिसरों के अंदर बात ही है। जो हमारा मरसिया आएगा वो भी मुसद्दस की शक्ल में है। तो सौदा ने मुसद्दस की शक्ल दी और उसके बाद ज्यादातर मरसियों के अंदर मुसद्दस की शक्ल ही मिलती है, मुसद्दस की शक्ल में मरसिए लिखे जाते हैं। लेकिन यहां कुछ भी मुकर्रर नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है। 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं। कोई पक्का या पुख्ता तौर पे आप नहीं कह सकते कि 6 से ज्यादा मरसिए शक्ल में नहीं लिखे जाएंगे, ये मरसिए में 6 से कम मिसरे के बगैर मरसिया पूरा नहीं हो सकता। 6 मिसरों से कम में भी लिखा जा सकता है, यानी मुखम्मस में भी लिखा जा सकता है, मुरब्बा में भी लिखा जा सकता है, और मुसद्दस वगैरह के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मकबूल और अच्छे मरसिए कहलाते हैं, जिनको उम्दा किस्म के मरसिए कहा जाता है, वो मुसद्दस की शक्ल के अंदर ही लिखे गए हैं। मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मुसद्दस को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई और फिर मरसिए के लिए सिर्फ यही हैयत मखसूस हो गई। मीर ज़मीर ने मरसिए के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए जो हस्बे ज़ेल है। तो सौदा ने मरसिए को मुसद्दस की शक्ल दी। उससे पहले मरसिए कोई गज़ल के हैयत पर लिख रहा है, गज़ल की तरह लिख रहा है, कोई नज़मों की तरह लिख रहा है, कोई 6 मिसरे उसके अंदर दे रहा है, कोई 5 मिसरों के ऊपर मुबनी कर रहा है अपने अशार को, कोई ज़्यादा मिसरे ले रहा है, 7 ले रहा है, 8 ले रहा है, 9, 11 मिसरों के अंदर बंद मुकम्मल कर रहे हैं। तो सौदा ने हैयत फिक्स कर दी कि इस तरह से आपको मुसद्दस की शक्ल में इसको लिखना है। उन्होंने लिख के दिखाया और उसके बाद से मुसद्दस की शक्ल इसके लिए राइज हो गई। फिर शक्ल तो मुसद्दस की दे दी, लेकिन अज्जाए तरकीबी, तो अज्जाए तरकीबी किसने दिए? मीर ज़मीर ने। मरसिए को अज्जाए तरकीबी किसने दिए? मीर ज़मीर ने। बहुत बड़े और उम्दा किस्म के मरसिया निगार हैं मीर ज़मीर। उन्होंने मरसिए के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन की जो हस्बे ज़ेल है। अब जब हम इनका मुताला करेंगे आगे, जो इसके आने वाले हैं चेहरा सरापा वगैरह, आपको देखना है कि यह अज्जाए तरकीबी हैं। अज्जा जुज की जमा, जुज यानी हिस्सा। मरसिए जिस अंदाज में लिखे जाएंगे, जो उनका तरतीब होगी, जो उनका तसलसल होगा, जो उनकी बयानी होगी, वो इस अंदाज में होगी। किस अंदाज में होगी? ये 8 अज्जाए तरकीबी इनके बताए हैं, मरसिए के 8 हिस्से बताए हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज,
जंग, शहादत और उसके बाद बेन। ये 8 हिस्से बताए हैं मीर ज़मीर ने। 8 हिस्से जो बताए हैं ये इसके लिए फिक्स कर दिए गए हैं मरसिए के लिए, और इसी अंदाज में मरसिए लिखे जाते हैं। अभी कौन कौन से हैं? पहला जो जुज है या पहला जो हिस्सा है वो है चेहरा। चेहरे में क्या होता है? चेहरा मरसिए की तुमहीद को कहते हैं। तुमहीद, जब हम कोई खत लिखते हैं, कोई शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अलग अलग दूसरे मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। ऐसे ही तुमहीद के अंदर भी शायर ऐसे मज़ामीन नज़्म करता है जिनका मरसिए के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी मंजर के बारे में बात करेगा शायर अपने अजदाद के बारे में बात करेगा, अपने ख़ानदान के बारे में बात करेगा, और दूसरे कोई वाक़यात जो उस मौजू से, मरसिए के मेन मौजू से मुताल्लिक़ नहीं है, उन मौजूआत के बारे में बात करेगा। तो वो सब चेहरा के अंदर आते हैं। जैसे सुबह का मंजर, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, दुनिया की बेसबाती, सफ़र के मसाइब, अपनी शायरी की तारीफ, हम्द, नात, मनक़बत वगैरह जो भी उसमें शामिल करना चाहे वो शुरुआत इनसे कर देगा। इसीलिए इसका नाम है चेहरा। ये सबसे पहला जुज मरसिए का होता है। इसके बाद दूसरा जुज है सरापा। सरापा में मरसिए के हीरो के कदो कामत, खुदोखाल और दिगर औसाफ का बयान किया जाता है। चेहरे के अंदर माहौलियात, मंजर की निगारी कर दी, आसपास क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बता दिया। अब हीरो के बारे में बता रहा है सरापा के अंदर मरसिया निगार, और हीरो के बारे में बता रहा है उसकी कदो कामत, खुदो खाल, उसकी खूबियां क्या क्या हैं, वो क्या क्या कर सकता है, क्या उसने किया है पहले, वो सारी की सारी चीजें वो सरापा के अंदर बताएगा। अब रुखसत यानी हीरो जंग के लिए रुखसत हो रहा है अपने घर वालों से, जो उसके साथी हैं जिनके साथ वो विदा ले रहा है जंग के लिए जाने से पहले, उनसे बात कर रहा है। इस हिस्से में हीरो को मैदान जंग में जाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त लेते हुए और तमाम अजीज़ों से रुखसत होते हुए दिखाया जाता है। रुखसत के वक्त का मंजर रुखसत के अंदर शामिल कर दिया जाता है। रुखसत खेमों से मैदान जंग की तरफ लड़ने के लिए हीरो के बारे में बता दिया सरापा के अंदर। अब रुखसत के लिए वो जा रहा है। अब रुखसत के बाद क्या होगा? मैदान जंग में हीरो की आमद होगी। आमद, चौथा जुजू। इस जुजू में हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान शौकत के साथ मैदान जंग में आने की मंजर कशी की जाती है। क्या होगा इसमें? आमद में घोड़े के साथ मैदान में आने की, कि हीरो किस तरह से, किस वकार और इज्जत के साथ मैदान जंग में आता है, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाएगी, मंजर निगारी की जाएगी। उसके आने से दुश्मन के खेमों में किस तरह से खौफ फैल जाएगा, दुश्मन के जो पैरवा हैं, जो सैनिक है, जो फौजी हैं, वो किस तरह से डर के माहौल में हो जाएंगे, वो आमद के अंदर सारी चीजें मरसिया निगार बताएगा। इस झेल में घोड़े के मुबालगा आमेज तारीफ भी की जाती है। मुबालगा आमेज बड़ा चढ़ाकर कि घोड़ा किस तरह से चल रहा है, घोड़े की जो मछलियां हैं वो किस तरह से फड़क रही हैं, घोड़े की आंखों में किस तरह के जज्बात हैं, किस तरह की उसकी आंखें नजर आ रही हैं, घोड़े का चेहरा कैसा हो रहा है, वो आमद के अंदर ही घोड़े की भी खूब तारीफ कर देंगे। हीरो के घोड़े की, हीरो की तारीफ और हीरो के घोड़े की। इसके बाद पांचवा जुजू है रज्ज, के रुखसत हो गई, आमद हो गई मैदान जंग के अंदर। अब मैदान जंग के अंदर हीरो आके सामने वाले को ललकारेगा, दुश्मन को ललकारेगा, और ललकारने से पहले अपने बारे में बताएगा कि मैं क्या हूं, जो तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम्हें अपनी मिट्टी में मिला दूंगा, तुम्हें मजा चखा दूंगा, तुम मेरे खानदान को नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, मैंने फलानी जंग के अंदर इतने लोगों को शहीद किया था, मैंने फलाने जंग के अंदर इतने लोगों को जमीन दोज कर दिया था। अपनी सारी की सारी खूबियां रज्ज के अंदर हीरो बताएगा। अब यहां पर मंजर निगारी नहीं हो रही, हीरो के मुंह से वो बात कहलवाई जाती है, मुकालमा निगारी यहां पर मेन रहेगी। इस हिस्से में हीरो अपने खानदान की तारीफ, अपने बुजुर्गों के कारनामों का जिक्र और जंग के मामलात में अपनी महारत और बहादुरी वगैरह का बयान करता है, जिसको सुन के दुश्मन की फौज में और खौफ बढ़ जाता है। दुश्मन की फौज के जिस पहलवान से मुकाबला होता है वो भी अपनी और अपने असलाफ की बहादुरी का बयान करता है। हीरो भी बयान कर रहा है और साथ में जिससे मुकाबला होने वाला है, अगर एक पहलवान है,
اگر پوری فوج ہے تب تو زیادہ کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن اگر ایک پہلوان ہے تو اس پہلوان کو بھی بڑا بتا کے دکھائیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان کو ہیرو مارنے والا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو آمد ہو گئی، رخصت ہو گئی، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز۔ اب رجز ہو گیا، رجز کے بعد کیا ہوگا؟ جنگ ہوگا۔ یہاں پر جنگ ہوگی، ہیرو مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے، جو بھی اس کے سامنے مقابلے کے اندر ہے۔ اگر پوری فوج ہے تو فوج سے لڑنا شروع کر دے گا، اور اگر وہ ایک پہلوان ہے، ایک ایک کر آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو ان سے ہیرو لڑے گا اور بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ جنگ کے دوران کس طرح سے وہ لڑ رہا ہے، اس کا گھوڑا کس طرح انداز میں لوگوں کو چکر لگاتے ہوئے ادھر ادھر بھگا رہا ہے، مار رہا ہے، اس کی تلوار کی کیا کیا بجلیاں گراتی ہے، تلوار کی نیک میں کیا کیا رہتی ہے، کس انداز میں تلواریں چلتی ہیں، اس میں تلوار کی بھی مبالغہ آمیز بات چیت کی جاتی ہے، بڑائی کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے جنگ۔ جنگ کے بعد کا جو اگلا حصہ ہے یہ ہے شہادت، یہ ہے 7واں حصہ۔ یہاں پر ہیرو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے، شجاعت یعنی بہادری سے لڑتے ہوئے، بالآخر دشمنوں کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے اس جز میں اسی شہادت کا بیان انتہائی مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ مرثیے کے 8 جز ہیں، لیکن مرثیے کی کامیابی بچوں صرف 2 جزوں پہ منحصر ہے۔ کون کون سے؟ ایک تو ہے شہادت، اور دوسرا جو 8واں جزو آگے آنے والا ہے بین۔ یہ جزو اگر کامیاب ہیں، یہ ہمارے دل کے اندر تاثرات جگانے میں کامیاب ہو گئے، تو پورا کا پورا مرثیہ ہی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے جو مرثیہ نگار ہوتا ہے وہ اپنے کلام کی ساری طاقت ان 2 جزو کے اوپر اکٹھا کر دیتا ہے، ان کے اوپر پوری اپنی طاقت لگا دیتا ہے۔ پوری قدرت جو اس کو کلام کے اوپر حاصل ہے، اپنی قلم کے اوپر قدرت حاصل ہے، وہ ساری کی ساری محنت وہ ان 2 جزو کے اندر کرتا ہے، شہادت اور بین کے اوپر۔ کیونکہ یہ جو اجزائے ترکیبی 8 ہم مطالعہ کر رہے ہیں بچوں، یہ روایتی مرثیے کے لیے ہیں۔ روایتی مرثیے جہاں پر شہدائے کربلا کا ذکر ہو، اور کربلا کی جو جنگ تھی، جو عالم اسلام کی ہی نہیں پورے عالم کی بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی قربانی تھی، تو وہ جنگ فتح کرنے کے لیے نہیں تھی، وہ جنگ قربانی دینے کے لیے تھی۔ وہ جنگ اسلام کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تھی۔ وہ لڑے بہادری سے، لیکن لڑنا ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد شہادت تھا۔ وہاں جو حضرت امام حسین اور جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے اہل و عیال تھے، جو جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے، 72 لوگ تھے یہ تقریباً، اور وہاں سامنے والی فوج میں 30,000 لوگ تھے، اور یہ چاہتے 72 بھی اس 30,000 کے اوپر بھاری پڑتے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، ان کا مقصد شہادت تھا، ان کا مقصد قربانی کی مثال پیش کرنا تھا، اور ایسی مثال پیش کرنا تھا جو رہتی دنیا تک قائم ہو جائے۔ اور انہوں نے قربانی دے کر، شہادت دے کر، شہید ہو کر وہ مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گی، اور آج تک کوئی دوسری مثال اس کے مقابل نہیں ملی ہے۔ پورے عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آپ، جو حادثہ کربلا کا ہوا ہے، جو سانحہ کربلا کے اندر ہوا ہے، ویسا حادثہ، ویسا سانحہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا تمہیں، کہ معصوم بچوں کو قربان کر دیا گیا ہو، 4 مہینے کے 6 مہینے کے بچوں کے حلق کے اندر تیر ڈال دیے گئے ہوں۔ اس طرح کے حالات وہاں پر اس واقعے کے اندر نظر آئے تھے۔ تو وہاں مقصد شہادت تھا، تو شہادت ہی مرثیے کی کامیابی کے لیے چاہیے۔ تو شہادت، اور اس کے بعد جو شہادت کے بعد جو مرثیہ ہوتا ہے، جو بین ہوتا ہے، دکھ اور درد کا، غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اسی کو بہت مؤثر انداز کے اندر شاعر لکھتا ہے۔ 8واں جو جزو ہے بین، یہ مرثیے کا آخری جزو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے علیحدہ جزو شمار نہیں کرتے، بلکہ شہادت ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اس حصے میں اس کی منظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے، جب ہیرو کی لاش پر اس کے اعضاء، بالخصوص عورتیں، اس کی خوبیوں کا بیان کر کے روتی ہیں۔ مختلف اعضاء کے ان جذبات کو انیس نہایت مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ تو یہ 8واں جو حصہ ہے مرثیے کا، یہ بین کا ہے۔ یہاں پر جو خیمے کی خواتین تھیں، شہید ہونے کے بعد
शोहदा के जिस्म के ऊपर बयान करती हैं, वहाँ अपने गम का, दुख का इजहार करती हैं और तारीफ बयान करती हैं मरने वाले की, शहीद होने वाले की तौकीर बयान करती हैं। और मीर अनीस, मीर बब्बर अली अनीस, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो इस हिस्से को, बैन को बहुत मौसर अंदाज के अंदर लिखते थे। मीर अनीस का मरसिया है जो हम आगे मुताला करेंगे। तो ये हो गए बच्चों 8 अज्जाए तरकीबी। 8 अज्जाए तरकीबी कौन कौन से पढ़े हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था चेहरा, फिर सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। कितने हो गए? 8। 8 जुज़ू आपको याद करने हैं, मुंह ज़बानी याद करने पड़ेंगे बच्चों। जब आप इम्तिहानों में लिखोगे, इम्तिहानों में आपसे मरसिये के अज्जाए तरकीबी पूछे जाएंगे, तो अगर आपको याद हैं तो फिर अंदर का मामला आपने समझ ही लिया, वो आप पूरा का पूरा लिख दोगे। आप इनके नाम याद करने हैं कि ये क्या क्या हैं और किस तरतीब में आएंगे, तरतीब के मुताबिक इसको लिखना है, तसलसल बना रहना चाहिए इसके अंदर। आगे आते हैं, मरसिये के आखिरी 2 अज्जा यानी शहादत और बैन उसका असल मौजू हैं। उनकी कामयाबी पर मरसिया और मरसिया निगारी का कामयाबी का दारोमदार होता है। मरसिये का बुनियादी मकसद रोना रुलाना और रोने की तरगीब देना है। उस गम का जो करबला के अंदर हमें मिला था, उस गम को हरा करना, उस जख्म को हरा करना, उसको याद दिलाना मकसद होता है। याद दिलाने के बाद आंखों पुरनम हो जाएं, आंखों में आंसू भर जाएं, ये शायर चाहता है और यही शायर की कामयाबी होती है। अगर आंखों में आंसू आ गए, आंखें पुरनम हो गई, तो वो कामयाब मरसिया माना जाता है। यही वजह है कि शहादत और बैन की पेशकश में शायरा अपना सारा जोर कलाम सर्फ कर देता है और अपने अशार को पुरतासीर बनाने की भरपूर कोशिश करता है। कहाँ लगाता है जोर पूरा? 7वें और 8वें जुज़ू के अंदर। जो अज्जाए तरकीबी हमने 8 पढ़े, तो 7वां जुज़ू और 8वां जुज़ू यानी शहादत और बैन के अंदर शायर जो है अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरा कलाम की अपनी सलाहियत, अपनी खुसूसियत सब उस जगह के ऊपर सर्फ कर देता है कि ताकि उम्दा मरसिया निकल कर बाहर आए। आगे आते हैं बच्चों, अनीस और दबीर और उनके पैरवा के मरसियों में मरसिये की ये अज्जा आम तौर पर पाए जाते हैं। यानी कि दबीर ने फिक्स कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी अनीस और दबीर के जो लिखे गए मरसिये, उनके अंदर ये अज्जाए तरकीबी मिलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मरसिये में तमाम अज्जा मौजूद हों और इसी तरतीब के मुताबिक हों। बाज़ मरसिये ऐसे भी मिलते हैं जिनमें शहादत का बयान नहीं है, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद के वाक़यात नज़्म किए गए हैं। ऐसी सूरत में अज्जाए मरसिया का इल्तिज़ाम मुमकिन नहीं है। तो ये अज्जाए तरकीबी हैं, इसके मुताबिक ही मरसिये लिखे जाते हैं। लेकिन सिर्फ इसी के मुताबिक मरसिये लिखे जाएं तो वो भी मुमकिन नहीं है। इन अज्जाए तरकीबी के बगैर भी मरसिये लिखे गए हैं। तो अज्जाए तरकीबी याद रखने हैं, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि मरसिये इन अज्जाए तरकीबी के बगैर भी लिखे जाते हैं और लिखे गए हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये यहाँ पर सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है, जिसमें हमने मरसिये की तारीफ पढ़ी, मरसिया किसे कहते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, अज्जाए तरकीबी मरसिये के क्या क्या हैं, उनका हमने मुताला किया। सबक यहाँ पर जो पहला हिस्सा था मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।